اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجئے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ۔ ناظرین، آج جمعرات کا دن ہے اور آج رات 8:30 بجے اسی چینل پر لائیو بیان ہوتا ہے۔ آج کے بیان کا بہت اہم عنوان ہے، اٹھو مومنو، مسجدیں بلاتی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت کو لے کر تھوڑی گفتگو ہوگی، اور ایسے ہی مسجد اقصی کو لے کر تھوڑی گفتگو ہوگی، اور پھر مساجد کی تعمیر، مساجد کی آبادی، مسجدوں کا خیال رکھنا، اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اس کی کتنی برکتیں ہیں، ان تمام چیزوں پر آج رات 8:30 بجے بہت اہم بیان ہوگا۔ اپنی پوری فیملی کے ساتھ اس بیان کو آپ ضرور سنیں، دیکھیں، اور دوستوں کو بھی اس بیان کو دیکھنے کی دعوت دیں۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر ممبئی سے آ رہی، ممبئی سے رضا اکیڈمی کے سربراہوں میں سے حضرت الحاج سعید نوری صاحب نے ڈائریکٹ یہ ویڈیوز اور یہ تصویریں مجھے بھیجی ہے، یہ خبر مجھے بھیجی ہے کہ گزشتہ کل بابری مسجد شہادت کی 31ویں برسی پر ممبئی اذانوں کی گونج سے گونجا ہے۔ ممبئی اور مہاراشٹر سمیت ملک بھر میں یوم سیاہ، بلیک ڈے پرامن طریقے سے منایا گیا۔ پولیس کی سخت چوکسی رہی، مساجد میں دعاؤں کا اہتمام کیا گیا۔ رضا اکیڈمی کی جانب سے ممبئی، بھیونڈی، ناسک اور مالیگاؤں میں اذانیں دی گئیں اور بابری مسجد کی شہادت کو یاد کیا گیا اور بابری مسجد کی تعمیر کا اور اس کی آبادی کا عزم دہرایا گیا۔ کرشنا گری میں کالا پرچم لہرایا گیا۔ محمد سعید نوری نے کہا کہ جہاں ایک بار مسجد بن جاتی ہے وہ جگہ قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے۔ اگرچہ کہ مسجد بابری کو اس وقت شہید کر دیا گیا ہے، لیکن ایک جگہ جہاں مسجد بن گئی اب وہ قیامت تک مسجد رہے گی، وقت اور حالات چاہے جو بھی ہو، لیکن مسجد مسجد تھی، مسجد ہے اور مسجد رہے گی۔ مسلمانوں نے گزشتہ کل بابری مسجد کی بازیابی کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا اور پرامن طریقے سے یوم سیاہ، بلیک ڈے، کالا دن منایا۔ ناظرین، تلنگانہ میں آج اور میزورم میں کل
हलफ बर्दारी होगी, यानी जो भी सीएम मुख्यमंत्री बन रहे हैं वो शपथ लेंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सस्पेंस अभी बरकरार है। राजस्थान का मामला तो आपके सामने आ गया। राजस्थान में राजपूत बिरादरी ने साफ तौर से आंदोलन करते हुए ये कहा है कि जब तक कातिलों की गिरफ्तारी न हो तब तक मुख्यमंत्री को शपथ लेने नहीं दिया जाएगा। वैसे भी बीजेपी ने राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में सस्पेंस को बरकरार रखा है। अभी बीजेपी में लड़ाई और घमासान सीएम पद को लेकर जारी है, लेकिन कांग्रेस के मुख्यमंत्री तेलंगाना में आज शपथ लेंगे और मिजोरम में आइंदा कल शपथ विधि होगी। हलफ बर्दारी की तकरीब और शानदार प्रोग्राम होगा। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि डॉक्टर कफील खान, कई बच्चों की, मासूम बच्चों की जानों को बचाने वाला डॉक्टर कफील खान, जिसने योगी आदित्यनाथ के सिस्टम की पोल खोल कर रख दी थी और फिर जिसे योगी आदित्यनाथ की दुश्मनी का शिकार होकर जेल के सलाखों में कुछ वक्त गुजारना पड़ा। डॉक्टर कफील खान की एक किताब आई है, उस किताब के बाद फिर विवाद शुरू हो गया है और इसी को लेकर डॉक्टर कफील खान का बड़ा बयान आया है कि मुझे फिर बलि का बकरा बनाया जा रहा है और संगीन दफात के तहत FIR दर्ज की जा रही है। 3 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने BRD हॉस्पिटल गोरखपुर से मुअत्तल किए गए माहिर अमराज अतफाल डॉक्टर कफील खान के खिलाफ लोगों को हुकूमत के खिलाफ उकसाने और समाज में तकसीम पैदा करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया है। राजधानी के कृष्णनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमे में 5 नामालूम अफराद को भी मुलजिम बनाया गया है। इसी को लेकर डॉक्टर कफील खान ने कहा है कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अगले दिन चेन्नई से बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि मद्रास, चेन्नई यूं समझिए कि सैलाब की जद में आ गया और पूरा चेन्नई यूं समझिए कि डूबा हुआ है। इस वक्त खबरें आ रही है कि 18 अफराद के हलाक होने की खबर है। समंदरी तूफान मिचुंग के असर से मुसलसल तबाही मची है। चेन्नई में मौसलाधार बारिश और दीगर वजूहात की वजह से 18 लोगों के हलाक होने की खबरें आ रही है, जबकि तिरुपति में एक बच्चा अपनी जान से हाथ धो बैठा है। मैं आपको बताऊं कि चेन्नई से चलकर अहमदाबाद गुजरात पहुंचने वाली अहमदाबाद नवजीवन एक्सप्रेस तकरीबन यूं समझिए कि 5-7 दिनों से रद्द कर दी गई है, क्योंकि वो भी चेन्नई से निकलती है और चेन्नई का पूरा इलाका सैलाब की जद में है और डूबा हुआ है। राजस्थान के जयपुर से हमारे रिपोर्टर मौलाना अब्दुल कय्यूम फलाही ने बताया कि करनी सेना के सदर के कत्ल के बाद गुज़िश्ता कल जयपुर में और राजस्थान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़बरदस्त हंगामा आंदोलन हुए हैं। नए मकराना का यह बयान आया है कि नए वज़ीर आला नए सीएम को हलफ नहीं लेने देंगे। जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के सदर सुखदेव के कत्ल के बाद पूरे राजस्थान में हंगामा है। हुकूमत की तब्दीली के साथ ही इस बड़े वाक़े के सबब बीजेपी को सख्त मुश्किलात का सामना है। बीजेपी को लेकर लोगों में गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इसलिए अब राजपूत करनी सेना के सदर ने ऐलान किया है कि वो नए वजीर आला को हलफ नहीं लेने देंगे और उन्होंने खबरदार किया कि राजस्थान में नए वजीर आला को उस वक्त तक हलफ नहीं उठाने देंगे जब तक सुखदेव सिंह के कातिलों का इनकाउंटर नहीं हो जाता, उन्हें खत्म नहीं कर दिया जाता। और उन्होंने कहा है कि हमारे 3 अहम डिमांड्स हैं, मुतालबात हैं। इस मामले की NIA से तहकीकात करवाई जाए, पहली चीज। दूसरे, मुल्जिमीन का इनकाउंटर और गोगा मेडी को सिक्योरिटी फराहम न करने के मामले की हाई कोर्ट के जज से तफ्तीश करवाई जाए। और सुखदेव के कत्ल के खिलाफ राजस्थान के जयपुर में लोगों ने एहतजाज किया। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना ने राजस्थान बंद का ऐलान किया है और जयपुर में कारोबारी तंजीमों ने भी बंद की कॉल पुकारी है। शहर में चलने वाली बसों का ऑपरेशन भी रोक दिया गया है। इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल भी बंद कर दिए गए। वहीं राजस्थान में पुलिस ने करनी सेना के सदर के कत्ल केस में कार्रवाई की है। पुलिस ने इस मामले में हरियाणा से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता कल 6 दिसंबर जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक, जी हाँ,
ब्लैक डे है, सियाह दिन है, जिस दिन भगवा आतंकवादियों ने आतंकवाद का सबसे बड़ा नंगा नाच खेला था और अल्लाह के घर को यानी बाबरी मस्जिद को शहीद किया था। ये हिंदुस्तान के माथे पर, भारत के माथे पर एक कलंक है जो कभी नहीं मिट सकता। और फिर उसको लेकर जो फैसला आया है वो भी गोया कि एक ऐसा फैसला है कि जिसकी वजह से हिंदुस्तान की अदलिया पूरी दुनिया में बदनाम हुई थी। खैर, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने बखुशी न सही मगर खामोशी के साथ उस मामले को कबूल किया और मुल्क में अमन व अमान को बनाए रखा। बाबरी मस्जिद शहादत की गुज़िश्ता कल 31वीं बरसी थी। अयोध्या में हाई अलर्ट कर दिया गया था और पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात थी। मथुरा, काशी और वाराणसी में भी सख्त तरीन हिफाजती इंतजामात थे। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, एक बड़ी खबर इस वक्त मुंबई से हमारे रिपोर्टर मुफ्ती अबू अयूब ने भेजी है कि बोहरा समाज के मजहबी पेशवा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन को नशाने पाकिस्तान अवार्ड से नवाजा गया। दाऊदी बोहरा फ़िरक़े के 53वें अद्दाईउल मुतलक और दुनिया भर में बोहरा फ़िरक़े के रूहानी रहनुमा सैयदना मुफज्जिल सैफुद्दीन को गुज़िश्ता रोज़ यानी 5 दिसंबर मंगल को पाकिस्तान के ऐवान ख़ास में मुनक़िद की जाने वाली खुसूसी सरकारी तक़रीब में पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहरी एजाज़ निशान पाकिस्तान पेश किया गया। यहाँ जारी बोहरा फ़िरक़े के इदारा इत्तलात व नशरियात के मुताबिक ये अवार्ड पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गवर्नर सिंध कामरान और वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बासी जिलानी समेत दीगर काबिल ज़िक्र सरकारी ओहदेदारों के अलावा तक़द्दुस माप के भाई शहज़ादा इदरीस बदरुद्दीन की मौजूदगी में पेश किया। शहज़ादा तलहा नजमुद्दीन और शहज़ादा हुसैन बुरहानुद्दीन दाऊदी बोहरा बिरादरी के सीनियर अराकीन सैयदना सैफुद्दीन को सेहत तालीम और माहौलियात जैसी समाजी खिदमात और आलमी अमन और हम आहंगी को फ़रोग़ देने के लिए उनकी मुसलसल खिदमात के एतराफ़ में ये सदारती अवार्ड दिया गया। अवार्ड की तकरीब के दौरान सैयदना को पाकिस्तान में समाजी व इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए उनके मुतनव्वे इक़दामात पर सराहा गया। ये अवार्ड इससे पहले मलेशिया के वज़ीर आज़म और कतर के अमीर जैसे मुमताज़ सरबराहान ममलिकत को भी दिया जा चुका है। मर्दाना ताकत हासिल करें 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, एक बड़ी चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है कि मुंबई दहशतगर्दाना हमलों का मास्टर माइंड साजिद मीर को जेल में जहर दिया गया। बताया जा रहा है कि भारत और अमेरिका को मतलूब ये मुजरिम इस वक्त वेंटिलेटर पर है। पाकिस्तानी फौज और ISI की चाल और बैनुल अक़वामी एजेंसियों की कार्रवाई को नरम करने की कोशिश हो सकती है। अमेरिका और भारत में मतलूब लश्कर तैयबा के कमांडर और दहशतगर्द साजिद मीर को पाकिस्तान की जेल के अंदर जहर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी हालत फिलहाल तशवीशनाक है। खबर है कि उन्हें अस्पताल ले जाया गया है, जहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। साजिद मीर गुज़िश्ता साल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में सजा सुनाए जाने के बाद से पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में बंद है। मीर को कुछ दिन पहले अचानक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि मीर जेल के अंदर जहर खाने के बाद वेंटिलेटर पर है। दहशतगर्दों को मारने की ये कोशिश उस वक्त सामने आई जब उसकी जान को खतरे की वजह से उन्हें दूसरी जेल में मुंतकिल किया जा रहा है। बड़ी खबर मुल्क की आ रही है। जी हाँ, गौतम अडानी, कौन नहीं जानता है इस दोस्त के लिए मुल्क की कितनी चीजों को बेचा गया। इसको अमीरों की फेरिस्त में शामिल करने के लिए मुल्क को कितना बेचा गया, ये सब जानते हैं। आइए खुशखबरी सुनिए, गौतम अडानी दुनिया के 20 अमीरों की फेरिस्त में शामिल हो गए। शेयर बाजार में जारी तेजी के दरमियान अरबपति ताजिर और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की दौलत में जबरदस्त इजाफा हुआ। जब कोरोना के दौर में मुल्क डूब रहा था और
मुल्क की मईशत और जीडीपी खत्म हो रही थी, उस वक्त भी गौतम अडानी मालदार होते जा रहे थे। और अब इतने मालदार हो गए इन 3 सालों में कि गौतम अडानी अब टॉप 20 अमीरों की फहरिस्त में शामिल हो गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद होने वाले नुकसानात की वजह से गौतम अडानी अमीरों की टॉप 20 फहरिस्त से बाहर हो गए थे, मगर फिर कवर कर लिया है और अब वापस टॉप 20 की फहरिस्त में आ गए हैं। आइरादीन, 3 आखिरी बड़ी खबरें मेरे निगाहों के सामने बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर आ रही है। जी हाँ, गुज़िश्ता कल 6 दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद की 31वीं शहादत का दिन था। रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुल जमाती वफाक मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल का एक शानदार इजलास हुआ। इस इजलास में बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से उलमा और दानिश्वरान ने खिताब करते हुए कहा कि सुनो, फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी और हम बाबरी मस्जिद के लिए कुछ नहीं कर सके। यानी गुज़िश्ता कल 31वीं यौम शहादत के मौके पर पूरे मुल्क में बाबरी मस्जिद की शहादत को याद किया गया। बल्कि गुज़िश्ता कल मैंने भी ये कहा कि अपनी नस्लों के सामने बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र किया करो, बाबरी मस्जिद की तारीख बताया करो, क्योंकि आने वाली नस्लें जो व्हाट्सएप और पबजी और फेसबुक वाली नस्ल है, इन नस्लों को हमारी ये तारीख याद नहीं रहेगी। तो बाबरी मस्जिद का जिक्र किया करो। तो बाबरी मस्जिद की शहादत को लेकर गुज़िश्ता कल हिंदुस्तान में अलग अलग मकामात पर प्रोग्राम्स हुए। ऐसे ही खबरें परबनी से भी आ रही है कि बाबरी मस्जिद शहादत मामले में मुसलमानों के साथ इंसाफ फराहम किया जाए। एक जलसा भी लिया गया और बाकायदा एक मेमोरेंडम देकर इसका मुतालबा भी किया गया। और नांदेड़ से भी खबर आ रही है कि बाबरी मस्जिद के यौम शहादत के मौके पर मुसलमानों ने नांदेड़ ने बंद रखा, तमाम कारोबारी इदारे दुकानें मुकम्मल बंद रही। मुस्लिम नुमाइंदा कौंसिल की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। और आज रात में मैं इसी उन्वान पर कि उठो मोमिनो मस्जिदें बुलाती है, आज रात 8:30 बजे इसी उन्वान पर मेरा बयान भी होगा इंशाअल्लाह।